फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and this has been a tough day for the Indian bowlers. Marco Jansen और डीन एल्गर ने properly frustrate करा है Indian bowling attack को. Though we managed to get some wickets in the later stage of the first of the session, but 392 का स्कोर लग चुका है साउथ अफ्रीका का at the cost of 7 wickets और एक बहुत लंबी लीड लग चुकी है 147. Well, to talk more about this, I have with me Jamie Alter and will be shortly joined by Chetan Grula and Taus SB. Welcome back to Cricket Next, Jamie. And what do you make of this? I mean, we have been talking about this lead कि ये लीड जितनी कम होनी चाहिए थी उतना अच्छा था, but डीन एल्गर ने वन साइडेड कर दिया probably मेरे लिए तो ये क्या? Yeah, I mean, for me, the result of the match was sealed on day one when India made 208 for 8. हमने कल बहुत बात किया कि भाई अगर 300 से कम होगा तो काम नहीं होगा. अब जिस तरह से बॉलिंग रही है, खासकर आज के दिन, more disappointing personally for me. Probably even 450 would not have been enough because look, they're not done. I think Marco Jansen is also on his way to a maiden Test century. So it's just another. Unfortunately, this team led us to believe certain things, but this is probably shaping up to be one of the worst tours to South Africa in a long time. Because in the past couple tours, at least they've won a match. This time around, on the basis of the squad they picked, and I'm glad that Chetan's here because he often calls this the stupid phase. What we're seeing now is very much the manifestation of that stupid phase. So again, I called a loss for India on day one, and nothing is going to convince me that that's not how it's going to end up. Yeah, Chetan bhai, welcome to Cricket Next first of all. Or what do you have to say? You know, Dean Elgar has just made this contest one-sided affair now. I mean, 147 का लीड है और अभी भी 3 विकेट बाकी है. और जिस तरीके से कोर्ट से खेल कर गए वो मूड में लग रहे हैं जो नीचे के बैट्समैन हैं. I mean, क्या, not really much to say, to be honest. आप देखिए किस तरीके से डीन एल्गर आउट हुए हैं. It was a short delivery down the leg side, clipped his gloves and he was caught. और अगर अभी आप क्रिकेटइन्फो पे या कहीं किसी भी वेबसाइट पे, क्रिकेट वेबसाइट पे आप खोल के देखिए, वैगन व्हील देखिए, पिच मैप देखिए और बैटिंग मैप देखिए, कैसे डीन एल्गर ने शार्दुल ठाकुर को खेला है. He's bowled all over the place. He's bowled all over the place. And yeah, I mean, that was a very, very weird wicket कि आपको गलत बॉल कर करके आपको वो 18 ओवर बाद विकेट मिल गई है. कमेंटेटर्स कह रहे हैं, oh, it's that man again. I'm not going to name the ex-cricketer, Indian ex-cricketer. He's there for the official broadcaster. Oh, it's that man again, शार्दुल ठाकुर. हाँ, सिर्फ 18 ओवर लगे. 5 runs per over पे सिर्फ 18 ओवर लगे. Bowled all over the place, and it's that man again. I think Shardul Thakur has ended the debate. जडेजा और अश्विन जब भी अवेलेबल हो ना, ये तीनों जडेजा और अश्विन को आंख बंद करके खिला दो आप. So I'm not going to blame just Shardul. I think it's been a very insipid bowling. I think it's been overall insipid performance from India. I mean, I was just thinking, और मैंने ये ट्वीट भी किया है कि आज हमको एक ईशांत शर्मा जैसे बॉलर की कमी महसूस हो रही थी. एंड द प्रॉब्लम इज नॉट कि ईशांत शर्मा नहीं है, बिकॉज एनी प्लेयर कांट प्ले फॉरएवर. द प्रॉब्लम इज दैट वी हैवंट रिप्लेस्ड ईशांत शर्मा. अब आप ईशांत शर्मा को कैसे रिप्लेस करते हैं? आपको एक वर्क हॉर्स बॉलर चाहिए जो एक एंड होल्ड करके रखेगा और साथ ही साथ 1-2 विकेट भी निकालेगा. आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए. ऐसा बॉलर आपको, मतलब ऐसा बॉलर पैदा नहीं होता है. ऐसा बॉलर आप उसको चांसेस दे के उसको बनाते हैं. तो मेरे ख्याल से we have to look back at the selection committee from 2020 onwards, and Chetan Sharma has blood on his hands. This selection committee ne, headed by Chetan Sharma, has done nothing, absolutely nothing. When Madan Lal was appointed on the CAC and when Chetan Sharma applied for the job, मुझे लगा there's something wrong here. Madan Lal as the head of the CAC and then Chetan Sharma applying for the chief selector's job, there was something wrong over there.
and then obviously he became the chief selector. Obviously, it was pathetic. That selection committee has been absolutely pathetic. उन्होंने आपका कोई भी ट्रांजिशन आता है, आपके कोई भी प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट आते हैं, इट इज नॉट अ वंस, एकदम से आप उसका रिप्लेसमेंट नहीं लेते हैं. इट इज अ प्रोसेस. It's a gradual process. There was no process, there was no long-term thinking, there was nothing under Chetan Sharma. और उसका हमें यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है कि आज एक हमारे पास शमी नहीं है, तो हमारे पास बॉलर नहीं है, हमारे पास 2 बॉलर्स के अलावा बॉलर नहीं है. और अभी लोग आके कहना शुरू हो जाएंगे अश्विन की एवरेज ये, अश्विन की एवरेज वो. एक तो उसने बॉलिंग नहीं की, दूसरा जब भी वो बॉलिंग करता है कैच ड्रॉप कर देते हैं. So people just look at stats and all of that. So India doesn't have more than 2 bowlers. Prasidh Krishna is making his debut. Chalo theek hai. That doesn't give him a license to bowl badly. Keep on bowling full tosses, low full tosses and all of that. Kya hai? Is theek hai. No basics, no nothing. It's all, we can name some bowlers. I saw Jamie's tweet where he named 3-4 bowlers कि यहाँ पे कौन हो सकते थे. इंजरीज ने कितने सारे बॉलर्स को खत्म कर दिया है. मैं ये नहीं कहूंगा कि दीपक चहर को आप टेस्ट क्रिकेट खिलाओ, वो बंदा तो T20 ओडीआई नहीं खेला है कभी फिट होके. नवदीप सैनी 20 में व्हेन आई वेंट टू न्यूजीलैंड लास्ट, ही वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड एंड ही वाज सीन एज दिस ब्राइट होप, कि he can bowl in overseas conditions and all of that. 4 years later, where is he? Never been fit. तो एक सिलेक्शन कमिटी, एक हमारा NCA. What is happening? Just to add on this, just because I think what Chetan is saying is very important. Briefly, people say, pick somebody else. The 4 names I gave, were 3 of them are literally, I believe, I've not been to South Africa, Chetan probably knows, I believe Benoni is an hour's drive away from Centurion. And Arshdeep Singh, like Tosbai heard me say, it took India 2 years to realize that, Arshdeep can actually play one-day cricket, right? Look at the top 15 wicket takers of the Ranji Trophy. The tournament, the competition that's supposed to be your pathway to Test cricket, okay? In the top 15, there are 4 pacers. The only 2 who have some pace are currently playing for India A. The other 2, some guy called Baltej Singh, who's 33, and a guy from Manipur. So you can criticize Shardul, criticize all these guys. There is nobody coming through. If the Ranji Trophy top 20 is dominated by 16, 17 spinners, right? The fast bowlers kahan se aayenge? That lovely 7-8 years we had, it is long gone. And Chetan is also right about the Chetan Sharma-led selection committee as well. Dark days ahead for India's cricket. Yeah. Tausbhai, coming back to this game, मतलब आप कल आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी. 1-2 प्लेयर, दैट इज वन ऑफ देम इज मार्को जेनसन, वो आया 50 करके चला गया. मतलब व्हाट वर यू थिंकिंग, क्या प्लानिंग थी? ऑल ओवर द प्लेस. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इंडिया's bowling? पता चल जाता ना, देयर वाज नो प्लानिंग. आई मीन कल से ही शुरुआत हो गई थी भाई, कल से ही शुरुआत हो गई थी. जब आपने बुमराह और सिराज को नहीं लाया था लंच में, प्लानिंग पता चल गई थी आपकी. आपने शार्दुल की शुरुआत की, कृष्णा से शुरुआत की, फिर इसके बाद आपने देखा डीन एल्गर ने क्या किया. फिर आज मार्को यानसन, लवली यूज ऑफ विकेट कंडीशन एंड पैथेटिक बॉलिंग बाय टीम इंडिया. आई मीन कुछ नया दिख रहा नहीं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डिलीवरीज. वन ऑफ फ्रॉम शार्दुल आ गया, डीन एल्गर को ले लिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट ले लिया. आई मीन इंप्रूवमेंट कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब पिछले किसी को नहीं दिख रहा होगा. दैट्स व्हाई वी आर लाइक criticizing them. That's why we are not happy. We are looking, you're seeing sad faces over here, obviously, because India has not lived up to the potential. I wouldn't say आधा ही potential था, क्योंकि आधा तो शार्दुल ने ले लिया, आधा प्रसिद्ध कृष्णा डेब्यूटेंट है, और आधा आप कितना जसप्रीत बुमराह या सिराज पे रिलाई करोगे. आई मीन हेवी लोड आ जाता है. तो आई मीन प्लानिंग तो थी नहीं यार. प्लानिंग आपने अश्विन को खिलाया, अश्विन को क्या तौर पे खिलाया, ठीक है, खिलाना तो था, मगर कैसे यूज करना है वो भी इम्पोर्टेंट है ना. कहाँ यूज करना है एग्जैक्टली, रोहित शर्मा को, अश्विन को किस तरह से. ऑब्वियसली ये कंडीशन में नहीं आएंगे, मगर आपको वो विकेट टेकर एज ए यूज करना है. जहां जहां कंडीशन, जहां जहां आपको एक पार्टनरशिप दिख रही है, तो आपको चढ़ के बैठना है. गेट अश्विन समवेयर और द अदर, यू हैव टू एडजस्ट देम, बिकॉज आपने लिया है तो उनका इस्तेमाल भी करना इंपॉर्टेंट है. तो आपने कहाँ इस्तेमाल किया है? अभी तक 18 ओवर डाले,
और 1 विकेट आई है. आई मीन ही इज बीन द मोस्ट इकोनॉमिकल गाय राइट नाउ. अगर इकोनॉमिकल है, अगर आपके फास्ट बॉलर नहीं चल पा रहे, दे आर लीकिंग रन्स, तो आई थिंक यू शुड हैव गॉन अहेड विद अश्विन अ बिट मोर, थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि ये बंदे थक जाएंगे यार. 22 ओवर्स, 19 20 क्लोज टू 20 ओवर्स, 80 ओवर डाल दिए 1.5 दिन में. और अश्विन इज द मोस्ट, यहाँ पर अश्विन के पास एबिलिटी है डालने की, क्योंकि ये शॉर्टर है ना, थोड़ा स्लोअर, थोड़ा एनर्जी बचा सकते हैं. सो आई थिंक दे, रोहित थोड़ा गैम्बल कर सकते थे अश्विन से थोड़ा और ज्यादा, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दीज टू गाइज हु आर लीकिंग रन. और जैकपॉट में 1 विकेट मिल गया शार्दुल ठाकुर. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्लानिंग राइट नाउ. यानसन आके एंजॉय कर रहे हैं बैटिंग, और डीन एल्गर ने तो डीज दे दी है, बाकी सब और भी करेंगे. तो disappointing day यार, disappointing session so far. I mean, 392 is so bad यार. ठीक है जिमी, स्कोर ठीक है, बॉलिंग ठीक है, इकोनॉमी ठीक है, सब ठीक है. वी वर टॉकिंग अबाउट यार बहुत यंग बैटिंग स्क्वाड जा रहा है, क्या होगा, टेस्ट है, बहुत सारी चीजों की हम बात कर रहे थे. बॉलिंग अटैक भी यंग ही है. प्रसिद्ध कृष्णा मेकिंग हिज डेब्यू, मुकेश कुमार ने कुछ ज्यादा खेला नहीं है, एंड शार्दुल का वेवर हो जाता है कभी इकोनॉमी. एंड एज वी आर सेइंग 5.30 का इकोनॉमी इन अ टेस्ट मैच, आप 100 से ज्यादा रन दे चुके हो यार ऑलरेडी. तो बॉलिंग भी कुछ आप स्टेबल लेके गए नहीं थे. व्हाट डू यू हैव टू से? No, I think the bowling attack picked was possibly the best. I mean, I know that I said our team should have been here, but the Indian team, like I said earlier in the pre-show, it took the Indian management 2 years to realize, oh, our team can actually play one days. Because when you finally picked him, he got 10 wickets in 3 matches, right? So right now, I don't think he'll be in the reckoning. Probably after this series, the next time India plays test matches out of India, out of Asia, Arshdeep will be there. But right now, look at the squad picked. I've heard people, again, I'm not taking names, but I've been on these shows on Cricket Next when people have talked about Navdeep Saini being quick. I have never seen him bowl quick, and Chetan's absolutely right. 4 साल के बाद, if you've not cemented your place, that means you're not good enough. So the lack of options, I believe the right pace attack was taken to South Africa. I still believe I would still back Prasidh Krishna. Okay, he's bowled terribly, what 20 odd overs, but I still think he was the right choice ahead of Mukesh Kumar. अब उन्होंने काम नहीं किया, वो अलग बात है. So the bowling attack is the best you could possibly pick because Mohammad Shami नहीं है यहाँ पे. The only other bowlers who could possibly come in, like I said, are the ones playing 60 kilometers away, 65 kilometers away in Benoni right now. उस pool से आगे कौन? यहाँ प्लीज यश दयाल, यश ठाकुर, मोहसिन खान, इनके नाम मत लो. You have to be consistently playing red ball cricket. So I go back to like what Tausba and I were discussing before. If Arshdeep Singh went and played 3-4 county matches, naturally his next step should be, okay, ODIs, but then India's test squad. I will still say, I will defend the bowlers picked for this series. अफसोस की बात है कि जडेजा, apparently, I still don't believe it, had some back spasm. I mean, we've heard this. Whenever someone doesn't fit into your plans, he gets a stiff neck. So I'm not calling for that. But yes, like Chetan said, the debate over the two of them should be ended by this rather listless, insipid performance by Shardul Thakur. I'm not really putting the blame on the new bowlers. I'm just saying the team management could have, had more options, more experienced options, not the better ones, but the experienced. But who? Experience नहीं. एक second. Name me one option. कहाँ से लाओगे? कौन है? एक नाम बता दो ना. पिछले 2 साल में कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको उन्होंने किया है? ये जो बॉलर्स हम आज देख रहे हैं, सिराज के बाद there has been no breakout bowler. Siraj's breakout moment happened in 2018-19. 2018 के ऑस्ट्रेलिया टूर पे, ठीक है, उन्होंने व्हाइट बॉल से शुरुआत की थी, बट आप देखो ना, ग्रेजुअल सिराज वाज अ ब्रेकआउट बॉलर फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड उनको आप धीरे करके प्रोग्रेशन में खिलाते गए. एमएसके प्रसाद के अंडर सिलेक्शन कमेटी का अगर एक ब्रेकआउट बॉलर था, वो था मोहम्मद सिराज. हर सिलेक्शन कमेटी को एक ब्रेकआउट बॉलर देना होता है. जसप्रीत बुमराह के टाइम पे शमी भी आ गए, जसप्रीत बुमराह के साथ आप देख लो कौन आ गए, शमी के टाइम पे कौन आ गए. So you have to see from the fact that every selection committee is giving you one breakout bowler, और उसी से आपका bowling attack बनता है, उसी से आपका bowling attack sustain होता है. चेतन शर्मा की सिलेक्शन कमेटी ने हमें क्या दिया है? At the end of it, we got a Mukesh Kumar from it.
Are you telling me कि मुकेश कुमार would have been able to perform the holding role on this pitch? मैं तो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. Obviously, he is also not experienced. Yeah, you put it quite correctly. ये क्या था? See, but also South Africa, India. अरे. You have to also see this, right? Mohammad Siraj played. Mohammad Siraj played 15. He played 15. Answer Jay Krishnan. हाँ. Prasidh was probably not fit for the West Indies. लेकिन आप देखो, He was आपके पास not. एक मौका था. आपके पास एक मौका था उस टाइम पे. ठीक है, अजीत अगरकर was just coming in. He had not selected that side. ठीक है, और अगर even if he did select that side, he didn't have that. उनको blame नहीं कर सकते हैं अभी for the West Indies tour. वहां पे आपके पास मौका था कि आप एक अर्शदीप को ब्लड इन कर सकते थे, उसको एक टेस्ट का एक्सपीरियंस दे सकते थे, और आपने जयदेव उनाडकट को खिलाया उस सीरीज में. हम लोग, आप जाके हमारी वीडियोस देखो क्रिकेट नेक्स्ट पे, हम लोग अपना सर पीटते रह गए थे. व्हाट इज जयदेव उनाडकट डूइंग इन टेस्ट क्रिकेट? आपने इस चीज का आई गेस सही प्रेडिक्शन किया था चेतन भाई कि जयदेव उनाडकट विल गो टू वेस्ट इंडीज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आपने पहले ही सिलेक्ट किया. World Cup. मैंने तो वर्ल्ड कप के लिए बोला था वैसे. But yeah, again, Taus bhai, Arshdeep Singh, we have been talking about this. अगर आप MS धोनी की टीम देखिए, ठीक है, वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम में या उस टेस्ट टीम में आरपी सिंह, चैंपियंस ट्रॉफी में इरफान पठान, जैक एंड आशीष नेहरा, 4 लेफ्ट आर्म पेसर्स. उसके बाद आपको लेफ्ट आर्म पेसर ही नहीं मिल रहा, और अगर है तो आप उसे 11 या 15 में डाल नहीं रहे. आई मीन स्टार को ढो रही थी लिटरली जब वो इंजर्ड थे ऑस्ट्रेलिया की. नो, ही इज आवर बॉलर, व्हेनेवर ही इज फिट ही इज इन द लेवल. लेफ्ट आर्म पेसर्स का कुछ तो रोल होता है यार, आप लेकर ही नहीं. लेफ्ट आर्म पेसर्स को है अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, मगर वो पोटेंशियल क्या है, वो कैलिबर क्या है कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई टी20 तो ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में आके परफॉर्म करे, डिलीवर करे. ये हमारी बात हुई थी जेमी भाई से स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली बिफोर द डेज प्ले, कि कौन हो सकता है. खलील अहमद, ही केम अप विद नेम्स, खलील अहमद एंड अदर गाइस, देयर अ लॉट ऑफ बीन ट्राइड, बट वहां पर एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट क्या है, प्रपोजल क्या है, वहां पर कैसे जाना है, विजन कुछ नहीं दिख रहा. I'll just आप एक बंदे को लेकर गए थे, आपने उसे कभी मौका ही नहीं दिया, एंड दैट वाज अर्जुन अगसवाला. यस, ही हैज बीन इंजर्ड, वो इंजरी से थोड़ा बाहर हुए, ले ऑफ हुए, सब ठीक है, चिकबोन हुआ, उनके प्रॉब्लम हुई, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन आप लेकर गए और वहां बैठा दिया. चलो इंग्लैंड में बैठा भी दिया, कोई बात नहीं यार, उसके बाद रेकनिंग ही नहीं है. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड. आपके पास आपके डोमेस्टिक सर्किट में लेफ्ट आर्म पेसर्स नहीं है. हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं, we were happy. अब एक स्टेज आ गया जहां पर we were happy celebrating जसप्रीत बुमराह. ऐसा डेडली कॉम्बो 4-5 साल तक आपको कहीं नहीं मिलेगा, 5-6 साल की द बेस्ट इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक. उसके बाद हमने सिर्फ उस पर ध्यान दिया, ये नहीं ध्यान दिया कि भाई अगर इंजरी हो गई, सडनली 2-3 लोग बाहर हो गए तो क्या होगा. सो where was the backup? I don't know. ये ध्यान दिया होता या प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी ने ध्यान दिया होता तो they would have started preparing. यार they have MRF बेस एकेडमीज, NCAs, ये सब क्या वेस्ट है. ये सब आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया, ऐसा प्लेयर आपने तैयारी नहीं किया, आपको प्रिपेयर करना चाहिए. आप प्रसिद्ध कृष्णा इज नॉट अ बैड बॉलर, आई एम सेइंग ही इज रॉ. उसके पास पेस है बंदे के पास. डेब्यू पे मैं जज नहीं करूंगा या मैच, आपको उनको तैयार करना. ईशांत शर्मा आए थे 18 साल की उम्र में. ईशांत शर्मा वाज सिलेक्टेड फॉर हिज हाइट, द वे, द पेस दैट ही हैड एंड द पिच. हेवर्ड थे वो. इधर शुरुआत में उनका करियर में आप नहीं देखेंगे पहले बॉल से उन्होंने आगे पिच करना शुरू कर दिया और ट्रबल करे थे बैट्समैन को. नहीं, वो धीरे धीरे तैयार हुए. तो आपको वो तैयार करना है, वो ग्रूम करना है. आप मुकेश कुमार को लाके 32 साल की उम्र में ग्रूम करोगे प्लेयर को और कि यार अगले 4-5 साल सर्व करे, तो चांस ही नहीं है बॉस. और शार्दुल ठाकुर, मतलब हाउ यू टेकिंग शार्दुल ठाकुर, वेदर एज अ बैट्समैन, वेदर एज अ बॉलर, आपका क्या गोल है, कैसे आप यूज करोगे उनको. आप उनको या तो बल्लेबाज की तरह आप यहाँ पर ट्रीट कर रहे हो या तो फास्ट बॉलर की तरह. और फास्ट बॉलर की तरह ट्रीट कर रहे हो तो भाई बार बार वो ऐसा आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो मैजिकल स्पेल डाले या कि चेंज कर देंगे गेम, तो भाई वो नहीं है. ये मैंने पहले ही बोला है, वो नैक ऑफ विकेट, मतलब आपके पास एक वो ब्रेक थ्रू दिला देगा, गलती से एक विकेट मिल जाएगा, जैसे अभी आपका इसका मिला डीन एल्गर का, तो वो सब निकाल के दे सकते. बट इफ यू डिपेंड ऑन शार्दुल ठाकुर, सॉरी यार, ही कैन नॉट विन यू मैचेस. 180 के बाद ये वाला अगर हो भी गया ना, क्लिप हो भी गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ना ऐसे ही मिलता है शार्दुल को, ऐसे ही विकेट मिलेगा और चलेगा. दैट इज नॉट एन इशू अनलेस यू हैव 3 गुड फास्ट बॉलर्स. वहां पर आपको ऐसा सडनली इनको ऑन द टोज रखे, दे आर आस्किंग द
bowlers, batsmen, a lot of questions. तो यहाँ पर आपके सिलेक्टर्स की खामियां हैं, यहाँ पर आपके टीम थिंक टैंक की खामियां हैं, यहाँ पर आपके जो बोर्ड मैनेजमेंट है जो देखते हैं MRF तो पर्सनल बॉडी है, वो प्राइवेट बॉडी है, बट NCA ये सब आपकी मैनेजमेंट की खामियां है ओवरऑल। यहाँ पर प्लेयर टीम को हम नहीं ब्लेम करेंगे बिकॉज टीम आधी अधूरी है फास्ट बॉलिंग के साथ, बोलर्स आधे हैं यार, फुल बॉलर्स बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है। I have a comment here from Ravi Shankar. There are many fast bowlers in domestic cricket, but they are not ready for international cricket. मैं चेतन भाई के पास पहले मैं इसका जवाब ये हमेशा एक फालतू कमेंट फेंक देते हैं, इनको बोलो जरा पांच फास्ट बॉलर गिना दे डोमेस्टिक क्रिकेट। चेतन भाई इसका जवाब हमेशा एक फालतू कमेंट फेंक देते हैं, ठीक है? let him tell us 5 fast bowlers from domestic cricket. क्यों जेमी? All five will be the ones who did decently well in the IPL this April. That's it. Yeah. हमेशा एक फालतू कमेंट थ्रो कर दो। I just said let him name 5 fast. Let him name 5 non-IPL fast bowlers. This is what I'm saying. On the other live stream I do every second day ऐसे 10 कमेंट आते हैं and मैं कहता हूँ आप लोग का हक है मुझसे सवाल पूछने, but come with some prep. Can you name me? I just asked 2 people on Twitter whose name were not Ravi Shankar. Tell me who were the 4 fast bowlers in the top 15 of the Ranji Trophy. 2 are decently quick, they're playing in Vinoni. The other 2 are medium pace trundlers. Hey nahi koi. And if you're basing on IPL, and I know the names will come, Mohsin Khan ka naam aayega, Yash Thakur ka naam aayega, ek aur ka aayega, based on a couple good 4-over spells. 4-over spells do not make you a test bowler. When will the common Indian fan understand that? So yeah, I mean it's anyways. ठीक है, आपका हक है सवाल पूछना, हमारा हक है मुंह तोड़ जवाब देना। मैं इसका जवाब दूंगा कि रविशंकर होता क्या है कि आपको फास्ट बॉलर्स डोमेस्टिक में फास्ट बॉलर्स हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी करना पड़ता है, चांसेस देने पड़ते हैं। अगर आप 3 बॉलर्स के बाद 3 बॉलर्स वो खिलाएंगे जो ऑलरेडी रेकनिंग में है, तो वो प्रिपरेशन नहीं हो रही है आपकी, और आपने उनको खिला दिया जो बेचारे खेल कर ही नहीं आए, जिन्होंने क्रिकेट ही बहुत कम खेली है, और उनको आपने टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया, तो वो प्रिपरेशन नहीं होती, आपको तैयार करना पड़ता है बॉलर। यार एक चीज है मुझे खाली ऐड करना है यार, ये इंडिया ए टूर्स, ये बी टूर्स, ये कब होंगे? ये एक साउथ अफ्रीका टूर हुआ है ये, क्योंकि कोइंसाइड हो गया, और हर बार यही होता है, एक साउथ अफ्रीका टूर के बाद पता नहीं इंडिया ये कहाँ चली जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाती या इंग्लैंड नहीं जा पाती, ये कब होगा? That is what just again because of the pandemic the A tours had stopped. आप सिर्फ टूर पे नहीं भेज सकते ना, वहाँ पे भी टीम अवेलेबल होनी चाहिए खेलने के लिए। Because of the pandemic, the A tours had stopped. आप देखो अभी England Lions are coming before the England tour. Similarly, India's A tour is happening before the South Africa tour. So it is not just India that we can just send our A teams. वहाँ भी कोई खेलने के लिए होना चाहिए। All across the world, the A tours, the Lions, जो भी old India में तो A team कहा जाता है, those had stopped. They are. Am I audible? Yes, you are audible. Go ahead. They had stopped. They are just now 23 onward. They are just starting off. But again, they are just starting off. तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते थे कि वहां से आपको फटाफट अगले 6 महीने के अंदर आपको नाम मिल जाएंगे। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया का टूर है, और उसके इमीडिएटली बाद हमारा इंग्लैंड का टूर है। Do we have the bowlers for those 2 tours? इस टूर के पास हमारे पास बॉलर नहीं है। मैंने कल रात को भी कहा सुरम्या के शो में, और ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था, ये 2 मैच की सीरीज है, इसमें आप इतनी मिस्टेक्स नहीं कर सकते कि आप उससे सर्वाइव कर जाओ या रिवाइव कर सको। दो टेस्ट सीरीज में यू डू नॉट गेट चांसेस टू कम बैक। तो ये मैच तो गया मोर और लेस, यू नीड अ मिराकुलस बैटिंग परफॉर्मेंस है, तो ये मैच मोर और लेस गया, एंड उसके बाद आपके पास आएगा ही नहीं। और चेतन भाई सबसे बड़ी चीज है यहाँ, ये मैच गए और WTC के पॉइंट गए, उसके बाद फिर तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहना, क्योंकि उसके बाद इंडिया में 5 टेस्ट मैच खेलोगे, उसके बाद बांग्लादेश से आप खेलोगे, फिर आगे श्रीलंका से हम लोग खेलेंगे, उसके बाद हम तो फिर तो एक्सपेरिमेंट का टाइम बहुत है ना, क्योंकि आप ICC ट्रॉफी तो वैसे भी एक और साइडलाइन हो जाएगी। ये 4 बॉलर का नाम दिया है इनके पहले वाले कमेंट ने, बाय द वे। मैं इसका जवाब कौन बोल रहे हैं जरा देख लो आप। देता हूँ, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। Sorry, if I can have the comment again. Prasad is already playing. Avesh, yes, he is performing well with the red ball. Arshdeep, I don't know why he's not there. Kartik Tyagi other time injured रहे हैं. That's why Kartik Tyagi has been out of. Khalil Ahmed. Okay. वही ना, वो 5 IPL से नाम पकड़ लो, तो चिपका दो। मैंने बोला ना, send us 5 non IPL players जो आपने IPL के अलावा देखे हो कहीं पे, और आप हमें बताइए।
मोहम्मद भाई, सिराज जो है वो आईपीएल खेलकर नहीं आए थे। आप जाके उनकी 17 और 18 की रणजी परफॉर्मेंसेस उठा के देखिए। जब उन्होंने व्हाइट बॉल में डेब्यू किया है, आई वाज डूइंग कमेंट्री फॉर एबीसी रेडियो एंड द इंट्रोडक्शन दैट आई गेव देम वाज दैट दिस इज अ रेड बॉल बॉलर। ही इज बीन गिवन अ चांस इन व्हाइट बॉल बिकॉज ठीक है, आप ऐसे ही अपना मौका बनाओगे, उसको कंडीशंस का थोड़ा एक्सपीरियंस दोगे, बट दिस इज अ रेड बॉल बॉलर। गूगल करके आए अभी, सारे गूगल के सारे करके आईपीएल आए से उठा के, अभी, पूरा सारे आईपीएल स्टैटिस्टिक से लेके। उठा के, हाँ, रवि सारे भाई, के सारे आईपीएल से उठा के ले आए। अरे तो अभी आईपीएल खेलते हैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दे देंगे भाई आईपीएल भी तो हाँ खेलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे आप बताइए कि हाँ ठीक है, आप व्यशक और आकाशदीप, कार्तिक त्यागी जो आधा टाइम इंजर्ड रहते हैं, अरजान, चलो ठीक है, हर्षित राणा, ओके, ओ माय गॉड, लाइक आई सेड, इनका काम बस यही है कि एक बीच में कमेंट थ्रो कर दो, ना सर ना पैर ना कुछ। ग्रेट। इसमें से कितने बॉलर्स लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं रविशंकर? आई वुड जस्ट लाइक टू नो। There's no point asking questions because this is not live, right? This is not a live interaction. वो अपना रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे, नाम थ्रो इन कर देंगे। He's just thrown in the name, Vyashak. He's just thrown in Vyashak's name. What is the background there? What, again, like I said, I mean, it's not. Moving on from Ravishankar's comment, well, Shubham Garg यहाँ पूछना, Taus bhai, bigger question is, do we have a captain to lead in those Australia-England tours? Will need someone who look into eyes of opposition on those tours. अरे ऐसा आंखों में आंख डाल के एक ही बंदा दिख सकता था, विराट कोहली यार। अभी नेक्स्ट कैप्टन तो केएल राहुल मुझे देख रहा है, नेक्स्ट कैप्टन अगर वो मगर आंखों में हाथ नहीं डालेगा बेचारा, हाँ वो नहीं डालेगा। वो ऐसे again, what needs to be done is कि आप ये टूर 1 मिनट के लिए भूल जाइए, क्योंकि इस टूर में अब ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। You have a squad, you have to pick those players, but whether it's IPL performances, whether it's a Ranji performances, I think this is a very, very important Ranji season that is coming up. Very, very important Ranji season that is coming up. The players who are grabbing headlines in the IPL, एक चीज अलग होती है कि आप IPL में headline grab कर रहे हो, और दूसरी चीज होती है कि आप उसको रणजी से परफॉर्मेंस से बैक कर रहे हो। आपका कोई भी फास्ट बॉलर जो आपको आईपीएल में दिख रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कम इनटू टेस्ट क्रिकेट अनलेस ही हैज रणजी परफॉर्मेंसेस टू बैक इट अप। तो ये जितने भी नाम ये गिना रहे हो ना, आप इन 10 नामों को, जो आप जितने भी नाम आपने गिनाए हैं, इनको इस साल रणजी सीजन में आप फॉलो कीजिए। इस रणजी सीजन में देखिए वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो खेल भी रहे हैं, क्या वो खेलने लायक भी हैं, आर दे कैरिंग इंजरीज। शिवम मावी और कार्तिक त्यागी का नाम तो आपने ऐसे बैंड बाजा बारात के साथ ले लिया है, आर दे इवन फिट? But my point is कि this is a very important season. We have an Australian tour coming up. We need bowlers fit for that. Who beyond? हम लोग एक सवाल पूछते थे, who beyond Ashwin and Jadeja at home? Overseas में who beyond Bumrah, Siraj and Shami? और सिराज भी, let me be very honest, अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जिस पर बुमराह और शमी ऑपरेट करते हैं। जिस पर शमी और बुमराह ऑपरेट करते हैं उस लेवल पर नहीं है सिराज अभी। बिकॉज अगर जसप्रीत बुमराह और शमी दोनों नहीं है, सिराज नीड समवन फॉर हिज सपोर्ट। वो अकेले नहीं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते। यू आर टोटली राइट ऑन दैट पार्ट। एंड अगेन शामी इज ऑलमोस्ट एट द बैक एंड ऑफ हिज करियर। मेरे ख्याल 2-3 साल के बाद आपको उनकी रिप्लेसमेंट की प्रॉपर जरूरत पड़ेगी। जेमी, व्हाट डू यू थिंक? Shami? Yeah, I mean, look, again, Indian selection committees, even before, they tend to pick up 3-4 bowlers and play them in every single tour. I keep going back. Just if you're going to for the last 10 decades, ask for majority of ranked turners, then don't waste your fast bowlers, right? Like I said, if you want to get, you're talking about 2 years out of Mohammad Shami. He will have to play minimum just 3 series in those 2 years. You cannot play him in India. You cannot play him, I don't know when they're going to New Zealand next. Shami has to be used at like 2 test matches at a time, because at the age of 35, 36, it's very tough to manage him, right? Ya to you do not play him in white ball cricket. I would do that now. World Cup, he was brilliant. Chalo, his last fling of the dice. Abhi jo bhi aap unse maximize karna chahte ho, I believe it should be test cricket. But if you're talking about 2 years, he's going to have to literally play 1 series a year, maximum 2. So keep him for the next tour of South Africa. I don't know when it is. Keep him for the odd
2 matches out of 4 in England. I don't know, Australia में आप उनको 2 मैच दे सकते हो, but he's not going to play three test matches in a row, you know. Umesh Yadav is actually older than Ishant Sharma, you know. So how are people taking his name? Some utter tools on social media have gone back and forth about Bhuvneshwar Kumar, why he's not here. I'm like, the guy's last first class match was 6 years ago, and you want him to come. You know, people just they don't watch cricket, or they watch, but they have their own opinions, right? Just to add briefly, Mohammad Siraj played about 15 India A matches with the red ball, from which he had some 62 odd wickets. So that was the preparation. That's why he was thrown into the deep in Australia, and literally go back to that absolutely riveting, one of the all-time best test series. India lost someone during and in between every single test match. But because Mohammad Siraj had played 15 odd India A matches, he was able to become the bowler, India's lead bowler in his third test match, you know. Aaj batao, is Shardul Thakur the leader despite playing 11 test matches? No chance. Is Prasidh Krishna doing Mohammad Siraj level things? No. So it comes back to what Chetan was talking about, thought process, selection committee. Let's give credit to Ravi Shastri, Bharat Arun, that selection committee. They had a focus. Okay, COVID came, but COVID's been gone for 2 years also, you know. I think the India A tour should have started at least 18 months ago. Let's hope it comes back, and let's hope, well, maybe it's Nagwaswala, maybe it's Arshdeep, maybe it's Umran Malik, maybe it's Mohsin, whatever it is. Let's hope that these guys get the same 15 odd matches that Mohammad Siraj got, and hopefully, you know, Mohammad Siraj type performances are there. But right now, IPL के basis पे तो ना होगा भाई. Yeah. Okay, lastly, Taus bhai, you know, क्या कर सकती है इंडियन टीम? 150 रन की लीड है ऑलमोस्ट, विद still 3 wickets in hand साउथ अफ्रीका के पास. What can they do? I mean, मेरे पास कोई जवाब नहीं. ऑल आउट करो और कम बैक करो. पहले तो ऑल आउट करो और कम बैक करो यार, और कम बैक हो सकता है कि नहीं वो तो पता नहीं मुझे. बट देन यार क्या करना है? बैटिंग करना है, बैटिंग करना, ज्यादा लंबा खेलना, ट्राई करना है एज मच एज यू कैन. रोहित शर्मा बेसिक्स, कीप इट टू द बेसिक्स. व्हाट एल्स यू कैन सी? आई मीन सी, पहले तो आप मार्को यानसे को निकालना है बैटिंग. लेट हिम नॉट स्कोर अ सेंचुरी. But क्या हमारे पास है वो wherewithal to dismiss this guy, somebody who's been batting? He's almost like a tail ender, almost like a lower middle order batsman, lower middle order batsman. उसको नहीं निकाल पा रहे तो what can I say यार? 3 विकेट है, उसको निकालो, followed by रखो wickets at least, like don't let 2-3 wickets go away, although it's going to be a difficult task. Riso Rabada, terrific form, but then Rohit Sharma should not play those foolish shots. ताउस भाई, ये मैच आज खत्म हो सकता है. Let's face it, ये मैच आज खत्म हो सकता है. Let's also talk about that. वही तो अभी क्या कर सकते हैं. India does not do 5-day matches. वो 4 दिन में करते हैं खत्म, चाहे हारे जीते 4 दिन भाई. हमें नहीं करना है. और we can just hope for a miracle right now, क्योंकि you know it's not even about miracle. It's about the यार हारना चाहिए, ये मैच हारना चाहिए. It should be a lesson. हारना चाहिए. यहाँ से आप मिरेकल एक्सपेक्ट करोगे? ये दोनों टेस्ट मैच हारेगी भाई, ये दोनों टेस्ट मैच हारेगी और कुछ नहीं बदलेगा. You've seen, you've been covering for 20 years यार, you know. नहीं मतलब फाइनल हारने के बाद नहीं बदलेगा. Coach is same, the short selection is same, everything is same, team management का thought is same है. But yeah, we've been talking since before the WTC. Srini was outside the Oval. All of us were talking about how the test team is the one which is actually broken. मैं तो कब से कह रहा हूँ, वनडे में फिर भी टीम ठीक है, और T20s में आप youngsters को खिलाओगे. Test team has been broken for over a year. So is anyone surprised by this? It's broken. And test team का सबसे बड़ा जो responsibility होता है, जो driving force होता है, वो selection committee होता है. The fact that our test team has been broken is down to that selection committee, that really pathetic selection committee headed by Chetan Sharma. He has blood on his hands. That selection committee has blood on its hands. चलिए, we can just hope as Indian fans, cricket fans, तो यही होप कर सकते हैं कुछ miraculous हो जाए, जल्दी विकेट निकले. उसके बाद पहले तो ये ऑल आउट करें. ये कितना लीड स्ट्रेच होगा अभी तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा. वेल, थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन, और दोबारा जुड़ेंगे आपसे अगले सेशन के एंड में. तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट. बाय.
फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।